السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خرم بیگ مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حق اسپیشل۔ ناظرین، دنیا بھر میں ہر سال 50 لاکھ سے زائد افراد تمباکو نوشی سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر پاکستان ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک واک کا انتظام کیا گیا ہے جو راولپنڈی مری روڈ سے ہوتی ہوئی پریس کلب کی طرف آ رہی ہے، جس میں بڑی تعداد میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اور این جی اوز نے شرکت کی ہے۔ حکومتی سطح کے لوگوں نے پناہ آرگنائزیشن کی اس مہم کو بڑا سراہا ہے۔ ہمارے ساتھ فیڈرل سیکرٹری اینٹی نارکوٹکس شیخ راشد شفیق صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ والدین کو کیا میسج دیتے ہیں اور حکومت کا تمباکو نوشی کی روک تھام کے لیے کیا کردار ہے۔ دیکھیں جی، میں پناہ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے دل کے حوالے سے آج یہ واک کا اہتمام کیا اور لوگوں کو یہ ایک میسج دیا کہ جی کہ جو سگریٹ نوشی اور دیگر جو منشیات وغیرہ کے نشے اس سے انسان کی صحت پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور پارلیمانی سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے وزارت اینٹی نارکوٹکس کے ہم بھی یہ پیغام پوری پاکستان کے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں سیمینار کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خدا کے لیے اس لعنت سے دور ہیں۔ ہم نے ماں کے نام کے سے ایک ویب سائٹ بھی لانچ کی ہوئی ہے حکومت نے، اس میں اسپیشلی والدین کو، اساتذہ کرام کو یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جس کے اثرات جو طلبہ میں ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو روکا جا سکتا ہے، اور الحمدللہ اس کا ہمیں بڑا اچھا رزلٹ مل رہا ہے۔ ہم نے راولپنڈی، اسلام آباد کی جتنے اسکول، کالجز اور یونیورسٹی ان کے ارد گرد اسپیشل برانچز کے لوگ بھی لگائے ہوئے ہیں سول وردی میں کہ وہ بھی اس قسم کے مافیا کے اوپر نظر رکھیں۔ ہم نے مافیا کو پکڑا بھی ہے اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دلوانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اس بار کسی پہلی حکومت ہے کہ جس نے نارکوٹکس کے حوالے سے قومی اسمبلی میں 2 بل بھی پاس کروائے ہیں کہ جو جن ملزمان سے یہ اس قسم کی منشیات ملے ان کی جلد از جلد ضمانتیں نہ ہوں، بلکہ ان کو کڑی سے کڑی سزائیں ملنی چاہیے، اور حکومت بھرپور طریقے سے اس پہ کام کر رہی ہے۔ لیکن میں یہ پیغام پوری پاکستانی قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ حکومت تو کام کر رہی ہے، لیکن جب تک پورا پاکستانی، ہر ایک شہری اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے حکومت کا ساتھ نہیں دے گا، اس وبا سے، اس لعنت سے ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ لہٰذا ہر شہری کو اپنا فرض اور اپنا حق ادا کرنا پڑے گا، تب بھی اس ناسور جیسی چیز سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ جی، والدین کے، اسی لیے میں نے کہا نا کہ ہم نے ماں کے نام پہ جو ویب سائٹ لانچ کی ہے، والدین کو ہی ہم یہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پیغام دیتے ہیں، خدا کے لیے آپ اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھیں، کیونکہ یہ جو فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے جب بچہ فرسٹ ایئر میں جاتا ہے یا یونیورسٹیوں میں جاتا ہے، تو یہ مافیا موجود ضرور ہیں اور یہ بڑے مافیا ہیں۔ ان مافیاؤں کو ہم نے پکڑ کے سزائیں بھی دی ہیں کہ وہ اس قسم کی میڈیسن دیتے ہیں کہ بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ میڈیسن لے لیں گے تو آپ کو رات کو نیند نہیں آئیں گی، آپ سارا سارا دن پڑھیں گے، ساری ساری رات پڑھیں گے، جس سے والدین بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین بچے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ اس لعنت کے اندر اس کو لعنت کو قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ اور اس کی واحد حل یہ ہے کہ جب ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کے بچوں کے اندر 2 3 4 دن کے اندر اس قسم کے اثرات آ رہے ہیں، تو وہ فوری طور پر اس یونیورسٹی کے جو ہمارا نارکوٹکس کا ایک سٹاف ہے اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ان معلومات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ اور اس کا واحد حل میں نے پہلے بھی کہا کہ اندر اپنے احساس سے ذمہ داری پیدا کرنی ہے۔ احساس جب تک نہیں ہوگا اور ارد گرد کے لوگوں کے ہم نظر نہیں رکھیں گے، اس لعنت سے ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اور والدین بالخصوص جو یونیورسٹیوں اور کالجوں کے بچے ہیں ان پر گہری نظر رکھیں اور اس ویب سائٹ کو غور سے دیکھیں اور پڑھیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ کس طریقے سے بچوں کے اوپر یہ اس کے اثرات آ سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، حکومت نے تو ہر پبلک پلیس کے اوپر، پارکس کے اوپر، اسٹیشنز کے اوپر، ایئرپورٹس کے اوپر، جو پبلک مقامات ہیں وہاں پر اس کے اوپر بین کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ جو امپورٹ ہو رہی ہے اور جو ان لیگل طریقے سے سمگل ہو کر پاکستان میں آ رہی ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور آپ ہر روز اخبارات میں، نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں کہ یہ جو فورس ہے اس پر چھاپے بھی مارتی ہیں، ان کو پکڑتے، لیکن یہ ایک مافیا ہے۔ اس مافیا، یہ آج سال 2 سال کا مافیا نہیں ہے، یہ 40 50 سال سے مافیا اس ملک میں کام کر رہا ہے۔ اور اس مافیا کا واحد حل جو ہم نے کیا کہ ان کو کڑی سے کڑی جب تک سزائیں نہیں دی جائیں گی، اور عدالتوں کی طرف سے اگر ان کو ریلیف مل جاتا ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر عدالتیں ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دیں اور ان کی 2 4 5 10 20 سال سے پہلے ضمانتیں نہ ہوں، تو اس لعنت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ جی، انہوں نے بہت اچھا بتایا پناہ والوں نے کہ دیکھیں، آپ اپنے دل کو اگر مضبوط رکھیں گے، دل کی پروٹیکشن کریں گے، تو آپ بہت اچھے پیرنٹس بھی ہوں گے، بہت اچھے انسان بھی ہوں گے، اور پاکستان پہ بوجھ بھی نہیں ہوں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جو ہیں میٹھا کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ بہت ساری بیماریوں کے باعث بنتا ہے۔ دوسرا، آپ گھی، ایسی چیزیں مت کھائیں جس میں نیوٹریشن وائز بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں، جیسے گھی ہو گیا، جیسے گوشت ہو گیا، بڑا گوشت، میٹ ہو گیا، تو جیسے آپ کا بیف ہو گیا، تو آپ ان چیزوں کو ذرا تھوڑا کنٹرول کر کے کھائیں ڈائٹ میں نا۔ اور اگر
तरह कार्बोहाइड्रेट्स आप लोग लेते हैं तो वो भी आप लोग एहतियात से लें, ताकि आपको आपके ऊपर वो बर्डन ना पड़े हार्ट के ऊपर। आपको पता है हार्ट की डिजीज़ आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि एक तो मनशियात की वजह से लोग मनशियात या नशा वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं, और सेकेंडली ये है कि जितने भी ये हैं हमारे जो एडिक्ट पर्सनस हैं, तो इनको प्रोटेक्शन करने के लिए हमें ये चाहिए कि जो ये नशा बेचते हैं उनको देखें, और जहाँ से नशा आता है कैसे सप्लाई किया जाता है, स्पेशली स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी यूथ को बेकार किया जा रहा है ये इस नशा देकर ना, तो हमारी जो यूथ है उसको मफलूज किया जा रहा है। इसी तरह से हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं या जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, तो वो कई लोग शौकिया लेते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो जैसे सिगार, तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए। अपनी बॉडी के लिहाज से उतना खाएं जितना आपको डाइट की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन ने, पनाह वालों ने एक बहुत अच्छा सब NGOs के साथ मिलके एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट क्या वो करते हैं हर साल, और हम उनके साथ हैं। मैं ख़ुद पनाह की मेंबर भी हूँ और XMP भी हूँ PMLN से, और मेरा अपना भी इदारा है नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, और हमारी भी पूरी टीम मौजूद है उनके साथ यकजहती के साथ, क्योंकि ये वर्ल्ड हार्ट डे है और पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। और आपको पता है कि सिगरेट नोशी बहुत ख़तरनाक है। उसके लिए उसका जो धुआं, एक कहते हैं धुआं निकालने के लिए आप अंदर अपने फेफड़े, अपनी हार्ट, हर चीज़ को आप ख़राब करते हैं। मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, उससे आपको बहुत परहेज़ करनी चाहिए। और प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है, पेरेंट्स से गुजारिश है कि स्पेशली अपनी बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें। जब वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आती हैं तो उनको ज़रूर स्मेल किया करें, मतलब हग करने के लिए तो उनको ज़रूर स्मेल करें कि उनके अंदर से कोई इस किस्म की स्मेल तो नहीं आ रही कोई धुएं की, तो आप इस पे नोटिस ले सकते हैं। इसी तरह बचाव हो सकता है। हमने अपने बच्चों को बचाना है, अपनी कौम को बचाना है। और जो सिगरेट है वो बहुत बुरी लानत है, इससे ज़रूर बचें। और अपने लिए, अपनी तो ज़िंदगी आपने गुजार दी, अपने बच्चों के लिए बच्चों को इससे दूर करें, और यही पैगाम है हमारा। देखें, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसका इनिशिएटिव इन्होंने लिया, और मैं समझता हूँ कि पनाह वाले भी काम कर रहे हैं, लेकिन पनाह के साथ साथ हर शख्स को इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हार्ट के मामलात हैं, पूरी दुनिया इसके लिए बिल्कुल एक स्टैंड बाई के ऊपर है कि भाई हार्ट के मामलात को कैसे डील किया जाए, क्योंकि मैं दुनिया के काफ़ी मुल्क फिरा हूँ, दुनिया में हर जगह इसका इलाज, इसके बारे में सोचा जा रहा है कि इसको किस तरीके से कम किया जाए। मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। एक दिन मैं, कोई प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, हार्ट के स्पेशलिस्ट थे बहुत, तो वो कई डॉक्टर के 30-40 डॉक्टर बैठे थे, उनसे वो बात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे। उन्होंने पूरी तकरीर में हार्ट के मुतालिक बताया कि हार्ट की बीमारी क्या होती है, किस तरह शुरू होती है, क्या उसका इलाज होता है, वो इलाज ठीक होता है नहीं होता, वो एक लंबी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन तमाम 40 मिनट की उनकी तकरीर के बाद जो लुबे लबाब था, आखिर में जो उन्होंने बात बताई, उन्होंने एक बात पूछी सब डॉक्टर से। उन्होंने कहा मुझे आप ये बताएं कि आपने ऐसा कोई पेशेंट देखा है या ऐसा इंसान देखा, पेशेंट नहीं, ऐसा कोई इंसान देखा है कि जिसको हार्ट का मसला ना हो और वो परहेज हार्ट वाला कर रहा हो? तो उन्होंने कहा ये ऐसा तो बहुत कम ही कहीं होता है। तो उन्होंने कहा क्या वो आदमी इंतजार कर रहा होता है कि मुझे हार्ट अटैक हो तो फिर उसके बाद मैं अपनी परहेज करना शुरू करूं? तो कहने लगे कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे तो 99%, 90%, 95% आप हार्ट के अटैक होने से आप अपने आप को महफूज कर सकेंगे। तो वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो इसीलिए मैं यहाँ भी वो करना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग सिर्फ अपनी ग़िज़ाओं के अंदर थोड़ी सी एहतियात कर लें, मुरगन ग़िज़ाएँ ना खाएं, सिगरेट नोशी तर्क कर दें। और मैं अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और आपसे करना चाह रहा हूँ कि जगह जगह आप शहर में देखें, मैं रावलपिंडी की बात फिलहाल करता हूँ, शहर में आप जगह जगह देखें, गलियों की नुकड़ों के ऊपर ये पाउडर पीने वाले पाउडरी जो हैं ये बैठे होते हैं, 5-5, 4-4 का, 3-3 का टोला होता है, और वो हीरोइन पी रहे होते हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। आजकल तो आइस भी आ गई और भी बड़े नशे आ गए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से, चूँकि मैं खुद भी हुकूमत का ही हिस्सा हूँ, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी गली मोहल्लों के अंदर ये लोग छड़ों के ऊपर बैठ के नशा करते हैं और पाउडर पीते हैं या आइस पीते हैं, उनके लिए प्रॉपर कोई जैसे हुकूमती लेवल के ऊपर, चाहे वो मोहल्ले के लोगों से ही कुछ लोगों को ले लें और उनकी एक कमेटी बना के, तो वो उन लोगों के लिए अस्पतालों में उनका इलाज करवाएं और उनको बुरी तरह डिसहार्ट किया जाए, ताकि कोई भी लोगों के छड़ों के ऊपर बैठ के
नशे ना करे। कम से कम पुलिस है, मोहल्ले के लोग हैं, कम्युनिटी है, वो सब अगर मिल के इसके ऊपर थोड़ा सा ना गौर करें और उसके हवाले से हुकूमत अगर ताउन करे तो इन लोगों को वहाँ से उठाया जाए, अस्पतालों में इनका इलाज कराया जाए और फिर इन पर नज़र रखी जाए। और ये जिम्मेदारी हो उसी मोहल्ले के उन लोगों की कि जो उनको जानते हों और वो उनकी जिम्मेदारी लें। तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक पैगाम देना बड़ा ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी दुनिया में एक आलमी दिन मनाया जा रहा है दिल की बीमारियों के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पाकिस्तान में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 36 साल से दिल की बीमारियों से आगाही दे रही है लोगों को कि आप दिल की बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए हम सेमिनार करते हैं, वॉक करते हैं, मुख्तलिफ लेक्चर्स देते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, और वर्ल्ड हार्ट डे के मौका पर हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं। ये महीना पूरा हमने जो है ना ये प्रोग्राम किए हैं लोगों को ये आगाही देने के लिए कि आप दिल की बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। आज प्रेस क्लब के सामने ये जो वॉक थी ये भी एक पैगाम था दुनिया को कि आज दिल की बीमारियों से आप बच सकते हैं अगर आप पनाह के बताए हुए असूलों पे अमल करें। पनाह का क्या कहना है कि आप सादा ग़िज़ा खाएं, पैदल चलें, तंबाकू नोशी से परहेज़ करें, मीठे से इज्तनाब करें, ब्लड प्रेशर अगर शुगर है आपको तो उसको कंट्रोल में रखें, आपका दिल मजबूत रहेगा। और यही पैगाम है पनाह का कि आप जो है ना इससे बच सकते हैं, क्योंकि बहुत महंगा इलाज है, दिल की बीमारियां बहुत महंगा इलाज है, लाखों में इसके टेस्ट होते हैं, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम अपने लोगों को अपने जो है ना हम वतनों को बचाएं, उनको बताएं कि इससे आप बच सकते हैं अगर इन लोगों को इन चीज़ों पे एहतियात करेंगे। माशाल्लाह ये बहुत जैसा कि आपको मालूम है कि आज दिल की बीमारियों का आलमी दिन है, और इसी तरह अपना जो ट्रस्ट है वो माशाल्लाह हर जो कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो पेश होता है। और माशाल्लाह से आज काफ़ी सारी NGOs इकट्ठी हुई हैं और लोगों को ये अवेयरनेस देने के लिए कि दिल की जो बीमारियाँ हैं इससे कैसे निजात हासिल किया जाए। तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान में दिल की बीमारियों का इलाज इंतहाई महंगा है। जो एक आम जो गरीब है उसको अफोर्ड उसके लिए करना बहुत मुश्किल काम है। तो उससे हमें बचा कैसे जा सकता है? तो लोग यही पता है कि जो मुर्गन चीज़ें हैं उसे परहेज़ किया जाए, वाक को मामूल बनाया जाए, वाक किया जाए और तम्बाकू नोशी से परहेज़ किया जाए, तो ताकि हम इस चीज़ से बच सकें। देखिए मैं समझता हूँ कि मैं अभी देखता हूँ कि जो कॉलेज हैं, जो स्कूल हैं, वहाँ पे भी तम्बाकू नोशी हो रही है, और छोटे छोटे बच्चे जो कम उम्री से ही इस नशे के आदी हो जाते हैं। और ना तो सिगरेट बल्कि इससे आगे जाके जो इंतहाई ममनुआ नशे हैं वो भी करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो उनकी उम्रें बहुत कम होती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो देख के उनको बहुत दुख होता है। तो वालिदैन को चाहिए कि उन पर कड़ी नज़र रखें। सिर्फ ये नहीं कि उनको आप देख रहे हैं, बाकी आप उनकी ख्वाहिशात पूरी कर रही हैं, महंगे से महंगा उनको मोबाइल लेके दे रहे हैं और बड़ी बड़ी उनकी ऐशो जो है ना उनकी ख्वाहिश पूरी कर रही हैं। लेकिन उनको इस पे भी नज़र रखनी चाहिए कि वो किसी शीशा सेंटर में जा रहे हैं, किस गैदरिंग में उठ बैठ रहे हैं कि जिस जगह पे वो लोग जो है वो नशाई हैं, तो उससे कड़ी नज़र रखनी होगी वालिदैन पे। जी नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की और हुकूमती कायदीन की राय जानी, जिनका कहना है कि वालिदैन को खुद मुस्बत लाएअमल अख्तियार करना होगा और ज़िम्मेदारी दिखानी होगी और अपने बच्चों पर कड़ी से कड़ी नज़र रखनी होगी ताकि इस मुज़ी नशे से बचा जा सके और नौजवान नस्ल को तबाह होने से बचाया जा सके। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी राय मेरे लिए अहमियत के हामिल है। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान खुर्रम बेग मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।